بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ البروفيسور ساجد مير، فضيلة الدكتور عبد الكريم بخش، معالي الشيخ الوزير محمد يوسف سردار، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الغنام وكيل وزارة الشؤون الإسلامية السعودي، سعادة الأستاذ نواف المالكي السفير السعودي، أيها الحفل الكريم، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئت إليكم من مكة المكرمة ومن أرض الحجاز، أحمل معي عبقها وروحها وريحانها، أبلغكم السلام وأزف إليكم أجمل التحايا والدعوات من الأرض المقدسة والأرض المباركة من بيت الحرام. السلام عليكم مكررا من بلد الله الحرام الآمن. हमदो सना और दुरूद व सलाम के बाद मैं सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, मोहतरम जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान अल गन्नाम साहब, मोहतरम जनाब नवाफ अल मालिकी साहब और आप तमाम हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पेश करता हूँ। मैं मक्कतुल मुकर्रमा से, जो कि उम्मत का रूहानी मरकज़ है, जो कि उम्मत के लिए एक खुशबूदार बाग की हैसियत रखता है, आप तक सिर्फ़ उन रूहानी फ़िज़ाओं का सलाम पहुँचाने आया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنته. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا محبة لك ومحبة لرسولك صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن الحرمين الشريفين، فاللهم إني أسألك أن تجمعهم في دار كرامتك وأن تسقيهم من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें जिस तरह आज हम यहाँ इस मुबारक इज्तिमा में जमा हैं, अपनी जन्नतों में जमा फरमा दे। ऐ मेरे रब बारी ताला, तेरे ये बंदे तेरी मोहब्बत में, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और तेरे दियार मक्कतुल मुकर्रमा और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दार मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह तू इनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमा, इन्हें जन्नत में दाखिल फरमा और इन्हें अपने हबीब के हौज़ से वो पानी पिला जिसके बाद कभी किसी को प्यास नहीं लगेगी। اللهم كما اجتمعت هذه الحشود وكما تزاحمت نصرة لبيتك الحرام، فاجعلنا نراهم يتزاحمون على أبواب الجنة ونحن معهم يا رب العالمين. मेरे रब, जिस तरह आज ये हरमैन की मोहब्बत में आज यहाँ जमा होकर इतना जम्मे गफ़ीर बन गए हैं, ऐ मेरे रब इन्हें इसी जम्मे गफ़ीर की सूरत में जन्नत में जमा फरमा दे। ووالدينا وأهلنا وأحبابنا والمسلمين, और हमारे वालिदैन को और हमारे अहलो अयाल को और हमारी महबूब हस्तियों को मुसलमानों में से सबको जमा फरमा दे। أيها الأحبة الكرام، إن هذه الزيارة التي أتشرف فيها أن أكون بين إخوتي في باكستان، البلد الشقيق المسلم العظيم، البلد الذي حافظ على هويته الإسلامية وعلى قوته بالرغم من الحروب وبالرغم من الابتلاءات التي واجهت هذه البلاد، إلا أنها لا زالت صامدة وقوية لأجل الحفاظ على هويتها وعلى مكتسباتها. إنني أجد الفخر والاعتزاز أن أكون واقفاً بين إخوتي من الباكستانيين، وخاصة من المنتمين إلى هذه الجمعية المباركة، جمعية علماء الحديث في باكستان وفي غيرها. أجدها فرصة سانحة أن أعبر عن مشاعر الحب والاحترام والتقدير لكل أهل باكستان،
لكل الحاضرين في هذه الأمسية المباركة. मुझे बड़ा ही शरफ और इज़्ज़त का मकाम है मेरे लिए कि मैं आज अपने एक बरादर इस्लामी मुल्क के अंदर खड़ा हूँ, जो हमारा एक सगा और बड़ा दिली महबूब मुल्क है, जिसने अपनी इस्लामी तशख़्ख़ुस की हिफाजत की है और बड़े सख्त हालात का मुकाबला किया है, और अपनी इस्लामी तशख़्ख़ुस की हिफाजत का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने उसे सख्त तरीन हालात से भी कामयाबी के साथ बाहर निकाला है। मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के दरमियान मौजूद हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने इन जज्बात का इजहार करूँ कि मैं अपने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के भाइयों के दरमियान मौजूद हूँ। मैं आपके सामने इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं आपसे दिली मोहब्बत रखता हूँ और अपने इन जज्बात को आप तक मुंतकिल करना चाहता हूँ। إن حضوري في هذه الأمسية جاء بناء على توجيه وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفقه الله وولي عهده الساعين إلى توطيد العلاقات وتعميق الأخوة الإيمانية والدينية التي تربطنا بهذه الدولة العظيمة دولة باكستان. لذا فإني أحمل إليكم أطيب تحاياهم وسلامهم وأمنياتهم ودعواتهم، وكذلك سلام وتحيات ودعوات العلماء في بلاد الحرمين الشريفين والشعب السعودي وكل من يسكن في قلب الجزيرة العربية وفي بلاد الحرمين الشريفين، والذين يبلغونكم أزكى السلام والتحية والأمنية والدعوات. मेरा आज का आपके दरमियान मौजूद होना खादिमुल हरमैन अश-शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह के हुक्म के मुताबिक है कि जिन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं आज आपके साथ यहाँ पर मौजूद रहूँ, ताकि हमारे हमेशा से बड़े नहायत गहरे ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाए। मैं उनका आपको नेक जज्बात और सलाम पहुँचाने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। इसके साथ साथ मैं उलमाए सऊदी अरब का सलाम भी आपको पहुँचा रहा हूँ, इसी तरह सऊदी अवाम का सलाम भी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। إن هذه الزيارات تأتي إنفاذا لأمر الله عز وجل الذي أمر هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف والمحبة والتآخي، ونهاها عن الفرقة والشقاق والنزاع في آيات كثيرة من كتابه وفي وصايا رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإننا نزور إخواننا في عالمنا الإسلامي لتعميق هذه الأواصر وتحقيق هذه الأوامر التي أمر بها ربنا عز وجل، تعميقا لأخوتنا الإيمانية ومحبتنا الدينية، وتحقيقا للوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف والإرهاب، ودفاعا عن هذا الدين الإسلامي العظيم الذي يتهمه أعداؤه بالإرهاب والتطرف والعنصرية، وليس الدين إلا الحق والعدل والمرحمة. हमारे ये इज्तिमाआत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस हुक्म के ताबे हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमें आपस में जुड़कर मुत्तहिद होकर मोहब्बत के साथ और उल्फत के साथ रहने का हुक्म दिया है, और हमें आपस में तफरकाबाजी और नफ़रत से मना किया है। कुरान मजीद की बहुत सी आयात और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात इस बात की तरफ हमें रहनुमाई करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुत्तफ़िक़ होकर और मोहब्बत के साथ रहने का हुक्म दिया है। हम पूरी दुनिया के अंदर अपने मुसलमान भाइयों की ज़ियारत के लिए इसी अल्लाह के हुक्म के तहत जाते हैं। ये हमारा दीनी फरीज़ा है और दीनी मोहब्बत है, और हम इस बात का इजहार करते हैं कि ये दीन एतदाल का और मयाना रवी का दीन है, ये दहशत गर्दी का, नफ़रत का और शिद्दत का दीन नहीं है। يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में मत बटो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं, और इसी तरह फरमाया कि तुम आपस में तफरके में मत पड़ो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी कुव्वत ज़ायल हो जाएगी। إن على العلماء والحكام والحكماء وعلى المسؤولين والمربين وأهل الإعلام والتعليم عليهم جميعا أن يسعوا إلى تحقيق اجتماع الأمة وائتلافها وعدم تفرقها. उलमाए किराम पर, हुकूमती ज़िम्मेदारान पर,
लोगों की तरबियत करने वाले लोगों पर और इसी तरह मीडिया से मुताल्लिक तमाम अहबाब पर इस बात की भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उम्मत इस्लामिया को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी अदा करे और उनके अंदर नफ़रतें फैलाने के हर काम को रोक के रख दे। अहलुस्सुन्नति वल जमाअह कुल्लु मन शहिद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह वत्तबअ अल-किताब वस्सुन्नत वल-इज्माअ फहुव मिन अहलिस्सुन्नति वल जमाअह वमन खालफ अल-किताब वस्सुन्नत वल-इज्माअ फलैसा मिन अहलिस्सुन्नति वल जमाअह। ये अहलुस्सुन्नति वल जमाअह का मनहज है और हर वो शख्स जो किताब व सुन्नत और इज्मा की इत्तिबा करता है, उसको मानता है, वह अहलुस्सुन्नति वल जमाअह में है। और हर वो शख्स जो किताब व सुन्नत और इज्मा की मुखालफत करता है, वह अहलुस्सुन्नह वल जमाअह में नहीं है। लिज़ालिक फ़इन्न मफ़हूम अहलिस्सुन्नति वल जमाअह अकबर मिन अन युहसर फ़ी हिज़्ब औ मुनज़्ज़मा औ दौला औ अशख़ास मअदूदीन बल इन्न मफ़हूम अहलिस्सुन्नह वल जमाअह अकबर मिन ज़ालिक बिकसीर इन्नहु यत्तसिअ लियशमल जमीअ المسلمين الذين يحكمون في أنفسهم الكتاب والسنة والإجماع। इसलिए अहलुस्सुन्नह वल जमाअह की इस्तिलाह का इतलाक़ बहुत बड़ा है। ये कोई बहुत छोटा सा मफहूम नहीं है, बल्कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम किसी ख़ास मुल्क, ख़ास जमात या ख़ास मसलक के साथ मुंसलिक कर दे, बल्कि ये माना इससे बहुत बढ़कर है। हर वो शख्स जो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए फैसल मानता है, वो अहलुस्सुन्नह वल जमाअह के अंदर दाखिल है। लिज़ालिक फ़इन्नना नस्तहज़िरु उख़ुव्वतना अल-इस्लामिय्यह التي تجمع المسلمين من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق وتجعلنا أمة واحدة مؤمنة. يجب أن نتعاون وأن نجتمع وأن نحس برابطة الأخوة وأن لا نسمح لأحد أن يدخل بيننا بفرقة أو تمزيق أو تشكيك لأجل تشتيت هذه الأمة وزرع الفرقة بينها. उम्मत इस्लामिया बहुत बड़ी उम्मत है जो आपस में भाईचारे के राब्ते के अंदर मजबूती से गुंदी हुई है। मगरिब से लेकर मशरिक तक ये उम्मत फैली हुई है। इसलिए हमें इस जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि हम इस उम्मत को इकट्ठा करने का काम करें, आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करें, हम इस ताल्लुक़ को महसूस करें और किसी को इजाज़त न दें कि वो इस उम्मत को किसी भी नाहिये से कमज़ोर करने की कोशिश करें। लक़द अहसन अल-मुनज़्ज़िमून लिहाज़ा अल-मुअतमर हीन इख्तारू लहू उन्वानन वहुव दौर उलमा फ़ी अत-तअरीफ़ बिमकानत अल-हरमैन अश-शरीफ़ैन वद्दिफ़ाअ अन्हुमा। इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िमीन ने एक ज़बरदस्त काम ये किया है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान इख्तियार किया है वो बहुत कीमती उन्वान है कि उलमा का किरदार हरमैन शरीफ़ैन की खिदमात के उजागर करने के लिए और उनको दिफा के लिए तो उलमा का क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ये उन्वान बहुत बड़ा उन्वान है। लिअन्नहा रम्ज़ुल वहदति वत्तौहीद, इसलिए कि हरमैन शरीफ़ैन इत्तेहाद और इत्तेफाक की एक अलामत है। ورمز اجتماع المسلمين في صلاتهم وفي عبادتهم ودعائهم وحجهم وعمرتهم। और इसी तरह मुसलमानों की नमाज में, मुसलमानों के हज और उम्रे में ये हरमैन शरीफ़ैन इत्तेहाद की अलामत है। وليس مكان في الدنيا يجب على القادر السعي إليه إلا البيت الحرام। और कोई दुनिया के अंदर मकान ऐसा नहीं है, जगह ऐसी नहीं है जहाँ का सफ़र जो है किया जा सके सवाए हरमैन के लिए। لقد عظم الله تعالى بيته الحرام وقال في كتابه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى ललआलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर की कुरान मजीद में इस तरह से जिक्र फरमाया है कि ये पहला घर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्ज़े ज़मीन पर लोगों के लिए बनवाया और वो मक्का के अंदर है जो लोगों के लिए हदायत का मंबा है। ومنذ أن بوأ الله لإبراهيم مكان البيت وأمره ببنائه فبناه هو وإسماعيل عليهما السلام وهما يدعوان الله عز وجل بالتوحيد والدلالة والهدى والإيمان وصلاح الذرية، والله عز وجل أمرهما بقوله وطهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود। जब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस घर की बुनियाद रखी
और इस घर के लिए अंदर से तौहीद की दावत और इस्लाह की दावत, और इसके साथ साथ अल्लाह से ये दुआएं मांगी कि अल्लाह उनकी ज़ुर्रियत की, औलादों की, नस्लों की इस्लाह फरमा दे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये हुक्म दिया था, वतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्का सुजूद, कि तुम दोनों मेरे इस घर को पाक कर दो तवाफ़ करने वालों के लिए और रुकू करने वालों के लिए और सजदे करने वालों के लिए। وفي سورة البقرة وفي سورة الحج تفاصيل بناء البيت العتيق وما أسس عليه. और सूरह बकरा और सूरह हज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह से ये हरम शरीफ की बुनियाद रखी गई, इसकी पूरी तफासील बयान की है। وفي سورة الحج وفي ثنايا آيات الحج قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. और सूरतुल हज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इस तरह से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शायर की अज़मत करता है वो तकवा, उसके दिल के अंदर तकवा पाया जाता है, और इसी तरह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस घर की अज़मत करता है उसके दिल में तकवा पाया जाता है। فالله تعالى عظم بيته وأنبياؤه كلهم عظموه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس تعظيما له، وقال لا يزال الناس بخير ما عظموا هذه الحرمة، وأشار إلى الكعبة. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस घर को अज़मत अता फरमाई है और तमाम अम्बिया इसकी ताज़ीम करते थे, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसकी ताज़ीम फरमाया करते थे। और आपने फरमाया कि जब तक लोग इसकी ताज़ीम फरमाते रहेंगे उस वक्त तक वो खैर पर रहेंगे। البيت الحرام والمسجد الحرام والكعبة المشرفة عظمها الله عز وجل، وجعل البلد الحرام آمنا، وحرم فيه قتل الصيد وعض الشوك وقطع الشجر، وحرم فيه إخافة الإنسان والطير والحيوان. والله عز وجل عظم بيته الحرام وجعل الصلاة فيه ب100,000 صلاة كما في الصحيح. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस घर को अज़मत अता फरमाई है, इसको अमन का गहवारा बनाया है। इसके अंदर किसी किस्म का शिकार करने को और किसी दरख्त को भी काटने को और किसी जानवर को ईज़ा पहुँचाने को हराम करार दिया है, और इसके अंदर एक नमाज को 1,00,000 नमाज का दर्जा करार दिया है। والمدينة النبوية المطهرة المشرفة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره ومركز دولته، وفيها مدفنه صلى الله عليه وسلم، وفيها قبر جسده الشريف الطاهر عليه الصلاة والسلام. और वहाँ पर मदीना तय्यबा, मदीना मुनव्वरा भी है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का शहर है, जो आपकी हुकूमत का मरकज़ी शहर था और जो आपकी हुकूमत का मरकज़ था, और इसी तरह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हैं। كما أن مكة والمدينة قد حرمها الله على الدجال فلا يدخلها. और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का और मदीना में दज्जाल के दाखिले को हराम कर दिया। إن الحديث عن مكانة الحرمين الشريفين حديث يطول وذو شجون. हरमैन शरीफैन के मकान और अज़मत को बयान करना एक तवील गुफ्तगू है जो बहुत एक लंबा मौजू है, जिस पर बहुत लंबी बात की जा सकती है। ولقد قام العلماء والحكام منذ عهد النبوة وإلى يومنا هذا بالدفاع عن الحرمين الشريفين وبيان مكانتهما بالتأليف والتعليم والتحقيق وتنبيه الناس إلى مكانة الحرمين الشريفين والحث على حج بيت الله الحرام واحترام المسجدين المعظمين. وقام كذلك خلفاء الإسلام بإعمار الحرمين الشريفين ورعايتهما. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर बाद में आने वाले तमाम मुसलमान हुक्काम बैतुल्लाह का एहतराम करते रहे, इसकी खिदमत करते रहे, इसके हज और उम्रे के लिए आने वालों की खिदमत करते रहे। इन दोनों मस्जिदों का एहतराम हमेशा उम्मत के अंदर मौजूद रहा, और आपके बाद आपके खुलफा ने भी इस जिम्मेदारी को निभाया है। وفي هذا القرن الأخير من إكرام الله عز وجل لهذه الدولة السعودية أن أصبحت راعية للحرمين الشريفين، وجعلت في دستورها ونظامها الأساسي في الحكم أن تخدم الحرمين الشريفين وأن ترعاهما وأن تقدم الخدمة لكل من يقصدهما للحج والعمرة والزيارة.
और इस आखिरी सदी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ममलकत सऊदी अरब का क़याम फरमाया, जिसके दस्तूर में ये बात मौजूद है कि वो हरमैन शरीफैन की खिदमत करेगी और हर उस शख्स की खिदमत करेगी जो हरमैन शरीफैन तशरीफ़ लाएगा। وقامت بتوسعة الحرمين الشريفين توسعة تاريخية لم يسبق أن بنيت بمثل هذا في تاريخها أبدا، فلله الحمد والمنة. हुकूमत सऊदी अरब ने हरमैन शरीफैन की वो तोसियात की हैं जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती, और हम इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं। إن العمارة الشاهقة التي نراها يوما بعد يوم والرعاية التي يلقاها الحرمان الشريفان من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين لهو أمر ظاهر للعيان يراه كل الناس من الحجاج والمعتمرين والزوار. मस्जिद हराम की खिदमत और उसको आबाद करने के लिए सऊदी हुकूमत जिस किस्म की खदमात फराहम कर रही है, हर आने वाला हाजी और उम्रा करने वाला मोतमिर अपनी आँखों से उन तमाम चीज़ों का गवाह है। ولا زالت الخدمات والتوسعات والتطوير لمنطقة الحرمين الشريفين تتوالى حتى هذه اللحظة. और अब तक बहुत ज़्यादा तोसियात होने के बावजूद मज़ीद मशरूआत जारी हैं और मज़ीद खिदमत जो है वो पेश की जा रही है। وفي موسم الحج تتلقى هذه الأرض المباركة ملايين الحجاج الذين يأتون من كل مكان لأداء النسك، فتتلقاهم الدولة بالرعاية والإمكانات الهائلة المتطورة لأجل تيسير الحج على ضيوف الرحمن. हज के मौसम में एक बड़ी तादाद अल्लाह के मेहमानों की ज़ियूफ़ुर रहमान की बैतुल्ला आती है, और हुकूमत खादिम हरमैन शरीफैन की हर मुमकिन कोशिश होती है कि अल्लाह के इन मेहमानों की खिदमत की जाए, और जो कुछ उनकी खिदमत में आसानियाँ पैदा की जा सकें वो ज़रूर पैदा की जाएँ। وتسعى لتحقيق قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करें कि फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज, जो हज के महीनों में हज की नियत कर ले, फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, वो हज के इस सफ़र के दौरान किसी किस्म की गुफ्तु शनीद बहस मुबाहिसा और जिदाल, आपस में झगड़ा और गालम गलोच न करे और उसको कोई तकलीफ़ न पहुँचे। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो इन तकलीफ़ों से दूर रहें। وفي كل موسم تنادي المملكة بأن الحج عبادة وأنه يجب تجنيبه أي معترك سياسي أو طائفي أو مذهبي، وألا يشوش على الناس بأي خلافات أو ما يعكر خشوعهم وأداء نسكهم، وأن الحج يجب أن يكون خالصا لله عز وجل، لا نداء فيه لأحد إلا لله، ولا تعظيم لأحد إلا لله، ولا يسمح لأحد بأن يعكر صفو الحج أو خشوع المسلمين في موسم الحج. हज एक इबादत है और हुकूमत सऊदी अरब हर साल इस बात का इआदा करती है और ऐलान करती है कि हज को हर तरह के सियासी मफादात से बालाए ताक रखा जाए। ये एक इबादत है, इसके अंदर कोई भी मुसलमानों के खुशू और खुदू को ख़राब करने की कोशिश न करे। हज वो इबादत है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, अल्लाह की अज़मत को इसमें बुलंद किया जाता है, इसलिए इसको हर किस्म के सियासी एजेंडे से दूर रखना चाहिए। إن تسييس الحرمين أمر مرفوض، وتسييس الحج أمر مرفوض، ولا يسمح لأحد بأن يتخذ من موسم الحج والعمرة والزيارة أو من الحرمين الشريفين مجالا للمزايدة أو للمساومة أو إقحام هذه المشاعر والشعائر المقدسة في معترك السياسة. हज एक इबादत है, इसलिए किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि हज के इस इज्तिमा से फ़ायदा उठाते हुए अपनी कोई सियासी मुहिम चलाए या किसी किस्म के कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। उम्मत इस्लामिया के इस अजीम फरीज़े को किसी और एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। وإننا نرفض ونستنكر ما نسمعه من صيحات ودعوات تدعو إلى إفساد الحج على المسلمين وتقحم الحج والعمرة والحرمين الشريفين في قضايا ما وضعت لأجلها، فإن الحج عبادة، وإن البيت لله، وإن المسجد النبوي شرفه الله عز وجل، فلا نرضى أبدا أن يمسى بسوء
لا بالكلام ولا بالفعل، وإن المملكة تحمي الحرمين الشريفين هي وحلفاؤها، وفي مقدمتهم أهل باكستان البلد العظيم، وكل المسلمين أكثر من 1 مليار مسلم في أنحاء العالم، كلهم يفدون الحرمين الشريفين بأنفسهم وأهليهم وأموالهم، ولا يرضون أبداً أن يمس الحرمان الشريفان بسوء. हम हर तरह से ऐसी आवाज़ों की और ऐसी कोशिशों की मजम्मत करते हैं जो इस बात की आवाज़ लगाते हैं कि हम हज में फसाद करेंगे, मुसलमानों को अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगाकर इस अजीम तरीन इबादत में खुशू और खुशू से दूर कर देंगे। हुकूमत सऊदी अरब और इसी तरह अहले पाकिस्तान और उम्मत इस्लामिया का हर शख्स हरगिज़ इस तरह की किसी भी कोशिश पर राज़ी नहीं है, और वो अपनी हर मुमकिन कोशिश बुरुए कार लाकर इस किस्म की तमाम मुआमरात को, इस किस्म की तमाम प्रोपेगेंडों को बिल्कुल खाक में मिला देगा। إن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويرعى الأنظمة المنظمة لأمور الحج والعمرة فهو مرحب به في المملكة العربية السعودية، ولا يسأل عن مذهبه ولا جنسيته ولا طائفته، ولا يوجد أي تعصب طائفي أو عرقي أو مذهبي تجاه أي مسلم. हर वो मुसलमान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की गवाही देता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देता है, उसे हम हज के लिए खुशामदीद कहते हैं। वो अगर हज के लिए आना चाहता है और हमें मालूम है कि वो शहादतैन की गवाही देता है, तो ऐसे में हम उससे ना उसके किसी मुल्क का सवाल करते हैं, ना उसके किसी मसलकी ताल्लुक़ का सवाल करते हैं, बल्कि उसको मुसलमान समझते हुए हज करने के लिए खुशामदीद कहते हैं। إننا مع ترحيبنا بكل من يريد الحج والعمرة، إلا أننا في نفس الوقت لا نرضى أبداً بأن يمس الحرمان الشريفان أو موسم الحج والعمرة بأي أذى، لا بالقول ولا بالفعل، وأننا نسعى بكل ما نملك إلى إبقاء الحرمين الشريفين آمنين، وأن من جاءهما للحج والعمرة أن يكون آمناً مطمئناً متفرغاً لأداء النسك بكل خشوع وطمأنينة وبلا أي تشويش. हम हज और उम्रा के लिए तशरीफ़ लाने वाले तमाम अल्लाह के मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन हम इस बात पर हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे कि हरमैन शरीफैन को ज़रा बराबर भी नुकसान पहुँचाया जाए, खा वो किसी की ज़बान से हो या किसी के फ़ेल से हो। हम चाहते हैं कि हरमैन शरीफैन तशरीफ़ लाने वाला हर हाजी और मोतमिर पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे खुशू और खुजू के साथ अपने रब की इबादत करे। إن إخوانكم في المملكة العربية السعودية من العلماء والحكام ومن عموم الشعب، وكذلك المسلمون في كل مكان، يقدرون لباكستان وأهلها، يقدرون لباكستان وأهلها الوقفة القوية والاستعداد لحماية الحرمين الشريفين، ويعتبرون هذا من قوة إيمانهم وتدينهم، وأنه وفاء منهم وليس غريباً عليهم. فإننا جميعاً والعالم الإسلامي نقدر هذه الوقفة العظيمة لباكستان وأهلها وجيشها. आपके सऊदी अरब के अंदर जितने भी भाई मौजूद हैं और इसके साथ साथ पूरे आलम इस्लाम में जो भी मुसलमान है, वो हर पाकिस्तानी को निहायत कदर की निगाह से देखता है। हम आपकी कदर करते हैं, आपके इस जज्बे की कदर करते हैं कि आप हिमायत हरमैन शरीफैन के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम आपकी इस वफा को सलाम पेश करते हैं। ونحن في هذا الجمع المبارك وفي ليلة الجمعة أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحمي هذه البلاد وبلاد المسلمين، وأن يبقيها آمنة مطمئنة. हम इस मुबारक रात जो जुम्मतुल मुबारक की रात है, इसमें अपने रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ममलकत पाकिस्तान को अमन व इस्तिक़रार अता फरमाए और इसकी हिफाजत फरमाए। وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों की तमाम दुनिया के अंदर हालत को बेहतर बना दे। وأن يطفئ عنهم نار الحروب والفتن والمشاكل والفقر والجهل
وأن يجعلهم آمنين مطمئنين. और जंगों की जो आग भड़क रही है अल्लाह उनके लिए उसको बुझा दे और उनके फ़ख्र को और उनके जहल को दूर फरमा दे और उनको अपनी रहमतों की लपेट में ले ले. أسأل الله تعالى أن يلطف بإخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كشمير وفي كل مكان. मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जो भाई फ़लस्तीन में हैं, जो कश्मीर में हैं, जो बर्मा में हैं, जो यमन में हैं, जहाँ जहाँ मज़लूमीन हैं, जहाँ अल्लाह ताला उनके साथ लुत्फ़ व करम का मामला फरमाए. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض. और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यहाँ जमा किया है, मैं अपने रब से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमें अपनी जन्नतों के अंदर भी इसी तरह जमा फरमा दे. أشكر مرة أخرى لباكستان العظيمة شعبا وحكومة ومسؤولين ما لقيناه من حفاوة وتبجيل وإكرام نعجز عن التعبير عنه. आखिर में मैं एक मरतबा फिर अहले पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का, ज़िम्मेदारान का और आप सब का नहायत मशकूर हूँ कि जिस इकराम का, जिस मोहब्बत का, जिस मेहमान नवाजी का आपने मेरे लिए इजहार किया है, मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता. وأسأل الله تعالى أن يتولى مثوبتهم عنا. और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको मुत्तहिद और मुत्तफ़िक फरमा दे. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर. पाक सऊदिया दोस्ती, पाक सऊदिया दोस्ती. इमामे हरम, इमामे हरम पाकिस्तान से रिश्ता क्या, सऊदी अरब से रिश्ता क्या, सऊदी अरब से रिश्ता क्या. नारे तकबीर. कारवाने दावते कुरानो हदीस मरकज़े जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान.